Okay, write down the question. A current of 200 microampere. 200 microampere deflects the coil deflects the coil of a moving coil galvanometer deflects the coil of a moving coil galvanometer through 30 degree through 30 degree. What should be the cause what should be what should be the current to cause what should be the current to cause the rotation to cause the rotation through pi by 10 radian. Pi by 10 radian. What is the sensitivity of galvanometer? What is the sensitivity of the galvanometer? इसमें क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि which type of sensitivity we have to calculate. Basically, according to the answer, it is current sensitivity. Okay. You know very well, is is equals to theta upon I is equals to NBA upon K, where NBA upon K is constant. Okay, so theta is directly proportional to I. Theta 1 upon, yeah, I1 upon I2 is equals to theta 1 upon theta 2. I1 it is given, you can calculate very easily. Basically, we have to calculate theta 2 upon I2. Theta 2 upon I2. Okay. Here, from here, you can calculate I1 is what? It is 200 upon I2
Okay, calculate it fast. Here you can write uh, theta 1 upon I1. Theta 1 is what? That is 30 degree. 30 degree upon 30 upon it is I1. I1 is 200. 1010 cancel. 0.15 degree per ampere per microampere. This is the answer. Done. Yes or no? Write down next question. An ammeter of resistance 0.8 ohm an ammeter of resistance 0.8 ohm can measure the current can measure the current up to 1 ampere. Okay, can measure the current up to 1 ampere. What must be the shunt resistance? What must be the shunt resistance to enable to enable the ammeter to enable the ammeter to measure current up to 5 ampere. ठीक है, कॉमा करके उसी में दूसरा क्वेश्चन है. What is the combined resistance? What is the combined resistance of the ammeter? What is the combined resistance of the ammeter and the shunt? Of the ammeter and the shunt. ना, अमीटर का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा. इस तरह से एक गैल्वेनोमीटर था, है ना. इसमें बीच में एक शंट लगा हुआ था पैरेलल में, है ना. इसमें से करंट आती है, इसको आई बोला जाता था. इसमें करंट
IG जाती थी, बची हुई करंट इसमें I माइनस IG, एस बोल दिया था, ये जी है ही ऑलरेडी। तो इक्वेशन क्या बन के आती थी, इक्वेशन इसके थ्रू पोटेंशियल, इसके थ्रू पोटेंशियल सेम होता था। मीन्स हम कह सकते थे कि I माइनस आई जी इंटू एस इज इक्व टू आई जी इंटू जी होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है शंट रेजिस्टेंस यानी एस निकालना है। I it is given 5 ampere, Ig is given 1 ampere. 5 minus 1 into S is equals to Ig is 1 into G is given 0.8. कैलकुलेट ये 5 नहीं है, S नोट डाउन। 0.2 ओम। इसमें सेकेंड पार्ट है कंबाइंड रेजिस्टेंस, यानी पूरे मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, कंबाइंड रेजिस्टेंस। ये एक कोई पार्ट था, दूसरा पार्ट हमारा, हम जानते हैं कि कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए दोनों आपस में पैरेलल में है। मींस 1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन शंट रेजिस्टेंस प्लस 1 अपॉन गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, 1 अपॉन 0.2 प्लस 1 अपॉन 0.8। अब इतना तो कर ही सकते हो। तो पहले सिंप्लीफाई कर लो, 10 अपॉन 2 हो जाएगा और फिर प्लस ये 10 अपॉन 8 हो जाएगा, 8 एलसीएम ले लो और 40 प्लस 10 मीन्स 50 अपॉन 8, 25 अपॉन 4, यानी आर ए इज इक्वल टू 4 अपॉन 25 ओम। Okay, clear? Any problem? No? Okay. Write down next question. The deflection produced in a galvanometer, the deflection produced in the galvanometer the deflection produced in the galvanometer is reduced to is
reduced to 45 divisions, is reduced to 45 divisions from 55. 45 division from 55 when a shunt of 8 ohm is used. When a shunt of when a shunt of 8 ohm is used, calculate the resistance of the galvanometer. करो इसको, देखो हो रहा है। यानी कि शंट लगा देने से, पर बिना शंट लगाए अगर 55 डिवीजन शो कर रहा था, ये गैल्वेनोमीटर जो है वो 55 डिवीजन शो कर रहा था, मान लेते हैं 55 डिवीजन यहाँ तक था, है ना। लेकिन जब शंट लगा देते हैं तो वो कम हो जाता है, यानी इसमें से करंट कम जाने लगती है। यानी टोटल करंट है ना, 55 पे करंट मान लेते हैं आई थी, तो 1 पे कितनी हो जाएगी, आई बाई 55, इसलिए 45 पे कितनी करंट हो जाएगी, आई इंटू 45 अपॉन 55। इस तरह से भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैं इसको रब कर देता हूँ पुराना वाला। करो, क्या मतलब हुआ इसका, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। कीप योर वीडियो ऑन। डू द क्वेश्चन फास्ट। नहीं हुआ, देखो बताया था। तो बोला है कि 55 डिवीजन जब इसमें कोई शंट नहीं लगा हुआ, यानी कि आई 55 डिवीजन पे कितनी करंट है, आई। ठीक है, 1 डिवीजन में कितनी करंट हो जाएगी, आई बाई 55। हमको कितना बोला है, 45 डिवीजन चला जाता है,
यानी I इंटू 45/55। इसको हम बोलेंगे आई, ये तो आई है ही, और इसको हम बोलेंगे आई जी। एक मिनट, हाँ ठीक। फिर फार्मूला जो हमारा होता है आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। शंट दिया हुआ है आपको, आई हमको आर जी निकालना है, मतलब जी निकालना है। आई जी इज व्हाट, आई इंटू 45/55 इंटू जी, है ना, आई माइनस आई जी। आई माइनस आई जी करेंगे तो ये कितना बचेगा, 45 माइनस 10, 10/55, 10/55 आई इंटू एस। 55 कैंसिल हो जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, जी इज इक्वल टू 10/45 इंटू एस, 10/45 इंटू 8 है ना। एक में कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कितना आएगा? ये आना चाहिए, देख लो इसको एक बार और सॉल्व कर लो। इसका आंसर मैच नहीं कर रहा, देखता हूँ मैं एक बार फिर से इसको, है ना, इसको मैं देखूंगा एक बार। Okay, open your NCERT. Open your NCERT. Question number 1, exercise. Question number 1, the question is, a circular coil of wire consisting of 100 turns, each of radius 8 centimeters, carries a current of 0.4 ampere. What is the magnitude of the magnetic field at the center of the coil?
you know very well, formula for the magnetic field mu naught by 2 pi I by a, है ना। और अगर n टर्न्स हो जाएंगे तो b इज इक्वल टू n टाइम्स mu naught by 2 pi I by a. This is the formula to calculate the magnetic field at the center. Okay, now note down fast. It is given 100. This is question number 1. And mu naught by 2 pi. Mu naught by 4 pi is what? You know very well. Mu naught by 4 pi is 10 to the power minus 7. Okay, if it is mu naught upon 4 pi means 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई आई, इट इज गिवन 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, and the radius is 8 centimeter, means 8 into 10 to the power minus 2. Okay. This and this, it will be 0.8 into 10 to the power, it is minus 5 upon 8 into 10 to the power minus 2. एक और यहाँ पे लेके आएंगे तो 8 ये 0.1 हो जाएगा, है ना। 10 टू द पावर इट इज माइनस 6 और ऊपर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। गड़बड़ हो गया क्या? एक मिनट, ये पाई नहीं होता है यहाँ पे ना फार्मूले में, एक मिनट याद रखना, ये पाई नहीं होता, सॉरी फॉर दैट। म्यू नॉट बाई 2 होता है, वायर होता है तब 2 पाई होता है ना। इट इज 2 ओनली, मीन्स इट इज 4 पाई अपॉन 2, है ना। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तुम लोग को याद रहेगा नहीं कुछ, मुझे ही सब करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 पाई, 2 पाई नहीं होता, 2 होता है, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये 2 पाई हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर इट इज माइनस 5 इंटू 0.4 अपॉन 8 इंटू 10 टू द पावर minus 2. 2 it is becoming pi into 0.8 upon 8 into 10 to the power minus 3. So इसमें डिवाइड करेंगे तो pi into 10 to the power minus 4 means 3.14 into 10 to the power minus 4 टेस्ला। अब आंसर आ रहा है, ठीक। 3.14 10 to the power minus 4 टेस्ला। Okay, next question number 2. A long straight wire carries a current of 35 ampere. What is the magnitude of the magnetic field at a point 20 centimeter from the wire? अब यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा।
यूज द फार्मूला. क्वेश्चन नंबर 2. B is equals to mu naught upon 2 pi I by a. It is 2 into 10 to the power minus 7 I. It is given 35 ampere and distance is given 20 centimeter. 20 into 10 to the power minus 2. It is 70 upon 20 into 10 to the power minus 5. Huh? 7 by 2 into 10 to the power minus 5 means 3.5 into 10 to the power minus 5 Tesla. Note down fast. Next question. Question number 3. The question is, a long straight wire in the horizontal plane carries a current of 50 ampere in the north to south direction. Give the magnitude and direction of magnetic field at the point 2.5 meter east of the wire. Hmm. Same formula. B is equals to mu naught upon 2 pi I by A. Okay. It will be 2 into 10 to the power minus 7. I is 50 ampere and 2.5 meter east of the wire. 2.5 meter. Okay. इससे इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा? 20 40 into 10 to the power minus 7, 4 into 10 to the power minus 6 Tesla. Four into 10 to the power minus 6 Tesla. Give the magnitude and direction. North to south. The wire is from north to south. North to south. And the point is 2.5 meter east. This is west and this is east. यानी यहाँ से डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट. करंट डाउनवर्ड है. तो ऐसे समझना, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे नॉर्थ टू साउथ दिया हुआ, ठीक है, और ईस्ट की तरफ पूछा हुआ, नॉर्थ टू साउथ. नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट इज हियर. नॉर्थ टू साउथ इधर की तरफ, जहां बैठे हो आप अपना वो इमेजिन कर लो किस डायरेक्शन में नॉर्थ है और किस डायरेक्शन में साउथ है और किस डायरेक्शन में ईस्ट है.
नॉर्थ टू साउथ मेरे ये ईस्ट पोजीशन पे ऐसे, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट इज देयर, दिस फिंगर इज टुवर्ड द पॉइंट। ओके, देख लोगे तो आपको मिल जाएगा अपवर्ड, तो डायरेक्शन विल बी स्ट्रेट अपवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, a horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in an east to west direction. What is the magnitude and direction of the magnetic field due to the current 1.5 meter below the line? सेम क्वेश्चन, सेम टाइप क्वेश्चन है, आप फॉर्मूले पर पुट करके आप निकाल सकते हो। पहले तो आप बात करते हैं किसकी, मैग्नीट्यूड ना, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, फोर्थ क्वेश्चन, 2 into 10 to the power minus 7 into 90 ampere and 1.5 meter. Okay. बताओ कितना हो जाएगा। देखो 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं ना, तो 3/2 30, 120 into 10 to the power minus 7, 1.2 into 10 to the power minus 5 टेस्ला, 1.2 into 10 power minus 5 टेस्ला है ना। इस तरह से कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड हो गए। व्हाट विल बी द डायरेक्शन बिलो द लाइन दिया हुआ, द डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट एंड 1.5 मीटर बिलो, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे, ईस्ट टू वेस्ट इधर, डायरेक्शन विल बी साउथ। ओके, लिख लेना, डायरेक्शन विल बी साउथवर्ड, टुवर्ड द साउथ। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, 4.5, what is the magnitude of the magnetic force per unit length of a wire carrying a current of 8 ampere and making an angle of 30 degree with the direction of uniform magnetic field of 0.15 Tesla? Done.
Keep your video on. No, no, not. Any problem? Done. ओके। कुछ स्टूडेंट लास्ट में ज्वाइन करते हैं अटेंडेंस के लिए ना। चलो अच्छी बात है, लास्ट में ज्वाइन करते हैं एकदम अटेंडेंस के लिए, है ना। ठीक है, अब मैं इन बिटवीन ले लूँगा अटेंडेंस। तुम लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हो अपने आप को। अब मैं इन बिटवीन अटेंडेंस ले लिया करूँगा। रिकॉर्ड टाइम वाइज होता है, जो लास्ट में लिखेगा प्रेजेंट सर मैं उसको काउंट ही नहीं करूँगा। और फिर जब रिजल्ट बनेगा तुम लोग जाना, तुम्हारा काम चलेगा। इसलिए 10 बार बता दिया गया, अटेंडेंस जरूरी है, अटेंडेंस जरूरी है। ठीक है, मत करो। ओके, ये क्वेश्चन करना आप लोग, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना मुझे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम मुझे कल नहीं दिखेगी तो मैं कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप पूछोगे तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो पहले बता देना व्हाट्सएप पे कि हाँ सर ये क्वेश्चन को करना है। अदरवाइज नेक्स्ट, क्या नाम है, नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम भी आपका आने वाला है, आप उस हिसाब से प्रिपेयर भी कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है आप, ओके, you can give your attendance and you may leave the class. Thank you.